Hey viewers, you're watching Dasavera and I'm Vidhi Joshi. Panipat and Sonipat are reeling after the shocking revelation that 32-year-old Poonam allegedly killed 4 children, including her own son, over the past 2 years. The accused, who was paraded by police after her arrest, reportedly displayed a chilling lack of remorse in her eyes, even as she was covered with a scarf. According to the Panipat police, Poonam confessed that she targeted children due to the jealousy of their beauty, particularly girls. Of her 4 victims, 3 were girls and 1 was her own son. She admitted to drowning the children to ensure they could not survive. Investigators also revealed that Poonam had links to witch doctor in Kairana, UP, and claimed that she was possessed by the spirit of a young man which influenced her actions. The first known murders occurred in 2023 in Bhavad village, Sonipat, where Poonam allegedly drowned her 3-year-old son, Shubham, along with her 9-year-old niece, Ishika, in a water tank. Fearing suspicion, she had killed her son and niece simultaneously. In August 2025, her cousin's 6-year-old daughter, Jia, was drowned in a water tank at her maternal home in Sewa village. At the time, the family considered the deaths accidental, performing last rites without raising alarm. The 4th murder occurred during a wedding in Nolta village on December 1, 2025. While the wedding procession was away, Poonam allegedly followed 6-year-old Vidhi, her niece, to the terrace and drowned her in a plastic tub outside the storeroom, locking the doors afterward. Her niece's sudden disappearance prompted a frantic search, culminating in the discovery of her body partially submerged in water. Poonam was seen coming downstairs with wet clothes, giving inconsistent explanations, including spilling milk or menstruation before attempting to dry her clothes elsewhere. Poonam's background indicates that she had completed her MA in Political Science from Kurukshetra University and later a B.Ed after her marriage to Naveen in 2019. Following the birth of her son, she reportedly became increasingly resentful towards other children in the family, especially those deemed more beautiful than her own child. Her first son's death, previously considered an accident in 2023, was now confirmed as her doing. Investigators noted that her mental instability, obsession with beauty, and alleged influence from a witch doctor contributed to her becoming a serial killer. The case came to light largely due to the insistence of Vidhi's grandfather, a retired sub-inspector who suspected foul play after the child's death. His complaint prompted police to reopen previous cases, ultimately revealing a pattern of murders staged to resemble accidental drownings. During interrogation, Poonam confessed to all the 4 killings and admitted that she had intended to kill all the children in her family, particularly girls. Police officials have confirmed that the accused had carefully staged the deaths to avoid suspicion. The investigation is currently ongoing and authorities are examining all the angles in order to understand the full extent of her crimes. Families of the victims are in shock, mourning the loss of the children, while authorities have ensured to pursue the case to the fullest. 1 दिसंबर को शाम को एक कंट्रोल रूम में सूचना मिलती है कि एक 6 साल की बच्ची निधि नौलथा गांव में पानी के टब में डूबने से उसकी मृत्यु हुई। पुलिस मौके पर पहुंची, शुरुआती छानबीन की, पता लगा कि जब वो डेड बॉडी रिकवर हुई इसकी तो कमरा बाहर से बंद था। वो हालात संदेहजनक थे, तो बॉडी को वहाँ से शिफ्ट करवा के हॉस्पिटल में रखवाया गया और उसमें हमने मर्डर का केस, जो सीन ऑफ क्राइम टीम और जो क्राइम वैसी देखने से मौके को लगा था कि भाई इसमें हत्या की आशंका और हत्या ही लग रही थी। तो उसमें 6 साल की बच्ची विधि की जो हत्या थी, उसमें हमने FIR दर्ज करके 2 तारीख को हमारी क्राइम टीम और DSP जो हमारे CAW नवीन, उनकी एक टीम बना के इसके अनुसंधान में हमने लगाया। ये जो बच्ची थी, ये पाल सिंह जो है उसकी पोती थी और वहाँ पर शादी का फंक्शन था, तो बारात वहाँ से जा चुकी थी और बच्ची वहाँ ट्रेस नहीं हो रही थी। तो घर वाले ढूंढ रहे थे कि बच्ची बारात में तो नहीं चली गई है। फ़ोन फान करके पता किया तो भी नहीं पता लगा कि बच्ची कहाँ है। तो उसकी ढूंढ जब शुरू हुई तो वो कमरे में मृत अवस्था में पाई गई थी। तो हमने उसकी की ही जो रिश्ते में चाची लगती है उसको इसमें गिरफ्तार किया है। वजह जो उसकी हत्या करने की है,
किशोर से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इन्हें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं, इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। तो 2 तो सोनीपत में ही, जहाँ भावड़ में जहाँ ब्याह हुई है, जहाँ इसकी शादीशुदा है ये, वहाँ भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूँ डुबो के मार दिया था। लेकिन उस पर कोई FIR दर्ज नहीं है। उसमें भी हम यहाँ से जो डिटेल्ड एक रिपोर्ट है कंसर्न जिले को भेजेंगे, उसमें जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी वो वहाँ करवाएंगे। इसी तरह जिस गांव की ये है, शिवा गांव की जो लड़की है, ये वहाँ बावड़ में शादीशुदा है, यहाँ भी इसने पीछे इसी साल अगस्त में 3-1 महीने पहले एक और बच्ची की ऐसे ही पानी में डुबो के हत्या कर दी थी। तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन में यही पता लगा कि जो सुंदर बच्चियां थी उन्हीं को टारगेट कर रही थी और अपने परिवार में ही जहां मौका मिलता था ये हत्या कर दी थी। यही पता लगा अभी तक। बाकी जो ये शिवा गांव में भी जो 19 अगस्त को जो हत्या की थी उसकी भी हम कंप्लेंट ले रहे हैं और उसमें भी कार्रवाई करेंगे। ऐसा क्यों करती थी सर ये बच्चे को, जैसे ये नौलथावाड़ी में तो बच्चे को जब बारात चली गई खिलाने के बहाने से ऊपर ले गई कमरे में और तब मैं पानी लेके भर के वहीं डुबो के मार दिया। जो इससे अब तक पूछा है इन्हें यही बताया कि ये साइको जो है किलर टाइप है, उस टाइप की लेडी है। इसकी जो विचार है, सोच है, वो इस तरह की है कि ये जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे पता नहीं क्यों नफरत करती है, इसकी ये सोच है। हाँ, इसने अपना बेटा भी मारा है। गांव भावड़ में जो सोनीपत की जो 23 की जो वारदात है जिसमें 2 बच्चे पानी के हौद में जो डुबो के मारे थे, पहले तो सुंदर बच्ची थी उनकी, उसको मारा, शक ना हो अपने बच्चे को भी डुबो दिया था इसने, उसमें वो ही मारा गया था। अब तक टोटल 4 बच्चे जो है, इन्होंने 4 बच्चों की हत्या की है। 2023 में 2 भावड़ गांव में और 1 अगस्त में यहाँ पर शिवा गांव में, और ये नौलथा गांव। यहाँ पर ये इसलिए पकड़ी गई क्योंकि कोई भी एक टब में बच्ची 6 साल की बच्ची डूब के नहीं मर सकती और कमरा ही बाहर से बंद था। तो बाहर से अगर कमरा बंद था तो बच्ची अंदर वो टब कैसे गया, तो उसी से पता लगा था कि ये हत्या है। वो वहाँ की कई चीज़ें हमने देखी, वीडियो फुटेज भी देखी, जो बारात में जो बनाते हैं लोग सब चले गए थे। ये बारात के साथ भी नहीं गई। जो गांव बारात में प्रथा होती है, भाई बारात को ना बस में गीत गा के और बस में चढ़ाने के लिए जाते हैं, ये वहाँ गांव में पीछे ही रहेगी। उसमें उस रस्म में भी ये शामिल नहीं हुई और पीछे रहेगी। बावड़ में सर इसकी बांधी थी जो 2 बच्चे एक साथ मारे थे, अलग-अलग नहीं, एक साथ ही थे वो। इसका अपना बेटा भी उसी वारदात में इसने मार दिया था। वो भी इनकी ननद की बेटी थी, भांजी लगा लो उसको, उनकी ननद की बेटी थी। नहीं, इन्होंने बाहर किसी में नहीं की, परिवारक में जहाँ किसी फंक्शन में जाती है, किसी को देख लेती है, इसके जो भी दिमाग में उठती है, तो इस तरह की हरकत इसने 3 बार की है। तीसरी बार ये पकड़ी गई। 2 बेटे थे इसके, एक तो बावड़ गांव में इस टाइम पे इसने हत्या कर दी थी, एक बच्चा अभी इसका है। नहीं, साथ ही थी। पहले वाले को पता लगा जब बेटे की बात कर रहे हैं किसने अपने बेटे को मारा। वो थोड़ी सी ऐसी होगी, थोड़ी सी गहरी होगी, 3 फुट की जैसी होगी। तो हालात अब जो दरखास्त देंगे, जो वहाँ पर इंटीमेशन भेजेंगे इसकी, उस मौके को भी देखेंगे कितनी उसकी डेप्थ थी हौद की। जो पानी में गांव में हौद बना लेते हैं भाई पशु को पानी पिलाने के लिए या कपड़े धोने के लिए, उस तक में कितना पानी था उस टाइम पे, तो उस हिसाब से उसका आकलन किया जाएगा। हमने वो एंगल भी, आप जो पूछना चाह रहे हो मैं बता देता हूँ आपको। सपोज हमने वो एंगल भी तांत्रिक के एंगल से या कोई जो ये पूछा करते हैं उसके एंगल से उन्होंने पूछताछ कर ली है। ऐसी कोई बात नहीं आई। नहीं, कोशिश की थी, ऐसा नहीं है, स्मार्ट है, बहुत समझदार है, और लेकिन इसको चिढ़ उठती है सुंदर बच्ची से। लड़कियों को टारगेट करती है, लड़कियों करती है वो, तो छुपाने के लिए भाई कभी पकड़ी न जाऊं, और डेस्परेशन में अपने बेटे को भी इसने पानी में डुबो दिया उस टाइम में, कभी पकड़ी न जाऊं। डिटेल में पूछताछ की होगी आपने, तो सुंदर लड़कियों वाला आ रहा है, ऐसा क्या रहा कि सुंदर लड़कियों को टारगेट बना? इसी ने जो बताया है, जो
इस सुंदर बच्ची को देखते ही इसको चिढ़ मचती है या कोई बड़ी हो के मेरे से सुंदर ना बन जाए, इस तरह की बात इसके दिमाग में। बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, बस है साइको टाइप है। जब अनमैरिड तब का इसके दिमाग में चला कि शादी के बाद है। ये तो शादी के बाद ही है। अभी कोर्ट में पेश करेंगे, अभी अनुसंधान की जो भी प्रक्रिया बची है उसके हिसाब से अगर रिमांड की आवश्यकता तो रिमांड इसमें लिखेंगे और पेश करेंगे। That's all for now. Stay tuned to the Savera for more updates. Do like, comment and subscribe to the channel.